Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. This says each of the 12 jars, jar 1 to jar 12, has a certain number of marbles. The table given below provides information about the number of marbles in some of the pairs of jars. Each jar has at least one marble, right? So सारे possible combinations का आपको value नहीं पता है, but some of the combination the table has been given to you. For example, jar 1 and jar 7 का total would be 139, jar 2 and jar 7 का total would be 169, and that is exactly what is mentioned in this next paragraph also. Out of all the values, exactly one value, that is jar 6 and jar 12's addition, is actually represented by Na. This is missing, so you'll have to figure this out, as can be seen from the first problem also, right? But some of the combinations are not there, remember, right? For example, I cannot directly say what is the total number of marbles in, let's say, jar 1 and jar 3 combined. So jar 1 and jar 3 ka total we don't know right now. Now we can directly jump to solving this particular problem, because there is not a lot of data, additional data. We have to figure out what can be done based on this particular table itself. Now we have to remember again, yes, this one point, that every jar has at least one marble. This will come into relevance a little later while solving the problems. So now what do I do in this first? सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये जितने भी आपके जार में जो एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, जार 1 में कितना, जार 2 में कितना, जार 3 में कितना, maybe will not be able to explicitly figure out the exact number for each of the jars, but I can represent the number of marbles in each jar in some form of variable, a single variable, and उन सारे jars को हम उसी single variable के form में represent कर सकते हैं. For example, if I, let's say, start off with, obvious होना चाहिए, jar 1 से start करना चाहिए. So if I, let's say, start off with jar 1 as x, jar 1 has x number of marbles. अब पॉइंट ये है कि जार 1 का तो जार 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो जैसे जार 7 एंड जार 1 का टोटल 139 है, जार 1 का अगर x लिया तो जार 7 का मैं लिख सकता हूँ x के टर्म्स में, एंड दैट वुड सिंपली बी 139 माइनस ऑफ x. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट द नंबर्स फॉर जार 7 टू जार 12, राइट, यूजिंग दिस फर्स्ट कॉलम. So next, jar 8 would be 177 minus x, jar 9 would be 75 minus x, jar 10 would be 220 minus x, then 200 minus x, and finally jar 12 would be 240 minus x, right? So we have completed for jar 7 to jar 12. Now how do I write the numbers for jar 2 to jar 6? Now सबसे पहले अगेन नोटिस करो, आप किसी के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल जार 7 का आपने नंबर लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसके रिस्पेक्ट में आप जार 2 भी लिख सकते हो, बिकॉज जार 2 एंड जार 7 का 7 आपको पता है 169 है, तो 169 माइनस ऑफ 139 माइनस एक्स, दिस नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार 2. बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड आइडियली लुक आउट फॉर अ नंबर cross which the difference can be written much more easily. जैसे 169 माइनस 139 करने में प्रॉब्लम है, राइट, थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. इससे इजी क्या पड़ेगा आपको, जार 11 के रिस्पेक्ट में लिखना. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिंपल नंबर है, दैट इज 200. 200 के अराउंड आपको प्लस माइनस करना बहुत ईजी है. 200 में 137 का डिफरेंस कितना है, सीधा 167, एंड 200 का डिफरेंस दैट इज 33. ईजी पड़ेगा, आप मेंटली कर सकते हो. सो आई विल पिक दिस जार 11 एंड जार 11 के रिस्पेक्ट में इस रो के क्रॉस ये जितने भी आपके जार 2 से लेके जार 3 के ये जार 6 तक नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लिखूंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जार 2 एंड जार 11 वाला केस. तो जार 2 जार 11 का टोटल 230 है, तो जार 2 का नंबर कितना आएगा, 230 माइनस ऑफ दिस जार 11, राइट. इसी के रिस्पेक्ट में आप सब कुछ लिख रहे हो, तो 230 माइनस ऑफ दिस, ये कर रहे हैं. I'll do this once only, बाकी हम फिर हम मेंटली करेंगे. सो 230 माइनस ऑफ 200 माइनस ऑफ x, तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 30. सो जार 2 हैज़ गॉट टू बी x प्लस 30. सो दिस इज हाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग. अब हम मेंटली कर चाहेंगे, बिकॉज हमने नंबर 200 इसीलिए उठाया भी था ताकि मेंटली कैलकुलेशन कर पाए. नाउ 350 माइनस ऑफ दिस, तो 350 माइनस ऑफ दिस वुड बी x प्लस 150. This is x plus 150. Then 182 minus of this, 182 minus of this will give me x minus of 18.
Then 192 minus of this, so 192 minus of this will be x minus of 8. And finally 214 minus of this, so this will result in x plus 14. Now I have figured out all the numbers in terms of x. Unique value अभी आप नहीं बता पाओगे. Now we can directly move on to the problems and see what is exactly asked. First problem, what is the value of this Na? Now Na था क्या? What was this Na? Na was the total number of marbles in jar 6 and jar 12 combined. Now if I look at these numbers, jar 6 and jar 12, I realize कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, that is x plus 14 plus 240 minus x. If I add them, this x gets cancelled out. इसीलिए x आपका important भी नहीं हुआ इस particular problem के लिए. So this is 14 and 240, that is 254, and that is what is the value of Na. So the answer to the first problem becomes simply 254. Right? Now let's move on to the second problem. What could be the maximum possible number of, so this has to be number of, what is the maximum possible number of marbles in jar 9? So jar 9 में currently अगर आप notice करो तो कितना है 75 minus x. So this is not unique and hence this maximum word is actually attached there. Now 75 minus x को हम क्या करना चाह रहे हैं, maximize करना चाह रहे हैं. अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ 75 माइनस एक्स को, सो इस x को मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा. 75 में से जितना लीस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही ओवरऑल की वैल्यू की मैक्सिमाइज हो जाएगी. सो x की लीस्ट वैल्यू कितनी होगी. देखने में लग सकता है कि x की लीस्ट वैल्यू यहाँ से निकलनी चाहिए बिकॉज एटलीस्ट 1 मार्बल होना चाहिए 1, बट प्रॉब्लम ये है कि x आपका 1 हो नहीं सकता. ना x 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर आप नोटिस करो ये जार 4 जार 5 राइट, ये इन जार्स को अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि x को अगर आप 1 रखोगे तो जार 4 एंड जार 5 में तो फिर आपका नंबर नेगेटिव हो जाएगा. 1 minus 18 would be minus 17 and which is not possible. The number of marbles kept in any jar cannot be a negative number. So कहीं ना कहीं x की जो मिनिमम वैल्यू आपकी सेट होगी वो जार 4 एंड जार 5 की वजह से सेट होगी. अब ऐसा x का वैल्यू होना चाहिए कि समथिंग minus 18 पॉजिटिव नंबर आए. पॉजिटिव नंबर भी क्या, एटलीस्ट 1 आए. तो मैं बोल सकता हूँ कि x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, दिस x मिनिमम, दिस पार्ट, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 19 होनी चाहिए, अबव 80. तभी ये आपका एटलीस्ट 1 बनेगा बिकॉज 1 तो एटलीस्ट सब बॉक्स में होना ही है. राइट, और 19 रखोगे तो सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई भी हो जाएगी. तो 75 माइनस ऑफ 19 will give me the correct answer. And 75 minus 19, 75 में 20 minus करा 55, एक ज़्यादा बढ़ा दो, that is 56. So the answer to the second problem, as it turns out, is 56. Right? I hope you understand this. Now, let's go to the third problem. Which of the following can be the maximum number of marbles in jar 2 and jar 3 put together? Now, let's first see jar 2 and jar 3. अभी cancel out नहीं होगा x, so we'll have to figure this out. तो jar 2 and jar 3 का total बनेगा कितना यार, x plus x, that is 2x, and 2x plus 180. Now, 2x plus 180 का maximum value आपको figure out करना है. Now, if I look at the options first, सबसे पहले ऑप्शन देखना चाहिए आपको हमेशा. देखो 2x plus 180 ये एक इवन नंबर है. इस वाले पार्ट में x कुछ भी हो, x के साथ 2 मल्टीप्लाई करके इसको भी इवन बना देगा. सो इवन प्लस इवन, दैट मीन्स ये एंटायर जो सम आना चाहिए जो कि आपका रिक्वायर्ड पूछा है जार 2 एंड जार 3, दिस हैज गॉट टू बी एन इवन नंबर. सो 255 तो कभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज द नंबर ऑफ मार्बल्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू. तो 255 एलिमिनेटेड. अब 2x plus 180 में सिंपली अगेन मेरे को वही से सोचना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो x का मैक्सिमम हम चेक करना स्टार्ट करेंगे. अब x का मैक्सिमम कैसे चेक करना स्टार्ट करें, तो x का मैक्सिमम कहाँ से सेट हो सकता है, जहाँ पे समथिंग माइनस x करके आ रहा होगा. जैसे यहाँ पे नोटिस करो 139 माइनस x है, फॉर एग्जाम्पल दिस जार 7. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू जो है वो 139 एंड अबव. 139 क्यों नहीं, बिकॉज 0 नहीं बना सकते और उससे ऊपर भी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर जार 7 का नंबर नेगेटिव आना चालू होगा. सो जार 7, जार 8, जार 9, जार 10, जार 11 एंड जार 12, इन सब से अगर आप नोटिस करो तो आप यहाँ से ना x का मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. x का मैक्सिमम वैल्यू फिर मेरे को कहाँ से समझ में आएगा, इस जार 9 से आएगा.
तो 75 माइनस एक्स, तो इसके अकॉर्डिंगली x का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इट हैज़ टू बी 74। इससे ऊपर अब आपका जार x का वैल्यू एक्चुअली में नहीं जा सकता। 74 पे हर चीज़ सेटिस्फाइड रहेगी। 74 से ऊपर करोगे तो मे बी सम अदर्स गेट सेटिस्फाइड, बट ये वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो x मैक्स इज 74। इस 74 को अगर मैं यहाँ पे प्लग इन करूँ तो 74 का डबल, दिस वुड बी 148। 148 plus 180, this has got to be the maximum value of this particular expression. So 148 plus 180, ये कितना हो जाएगा? 140 and 180 is 320. So ये कितना हो जाएगा? 328, राइट? तो 328 अभी फिलहाल हमारे हिसाब से मैक्सिमम होना चाहिए था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स इन दिस? तो इनमें से कौन सा आपका मैक्सिमम हो सकता है, बस आपको ये चेक करना है। तो 328 तो मैक्सिमम है ना, उससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा 328 से नीचे फिर आपका क्या है, जैसे 340 भी पॉसिबल नहीं है तो इसको भी अब आप एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस लेफ्ट, दैट इज आइदर 210 और 220। अब इन दोनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कौन सा आपका मैक्सिमम हो सकता है? तो 210 220 में अब आप बस चेक कर लो कि क्या 210 पॉसिबल है। तो अगर मैं मिनिमम के अराउंड सोचूं, बिकॉज मिनिमम के अराउंड काफ़ी एक क्लोज है, तो 180 प्लस 2x, इसमें x मिनिमम हमें पता था कितना लिया था हमने, 19 लिया था। अगर आप 19 इंटू 2 38 बनाओगे इसको, 38 प्लस 180 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 218, राइट? 180 प्लस 38 दैट इज 218। तो आई कैन से कि जार 2 एंड जार 3 का जो मिनिमम है वो 218 होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम है वो 328 होना चाहिए। तो उस रेंज में आपकी एक ही वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज ऑप्शन बी, एंड हेंस इट मेक्स ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। If the number of marbles in jar 2 and jar 3 put together is the minimum possible, so jar 2 and jar 3 यही सेम चीज़ था, jar 2 and jar 3 put together is the minimum possible। तो 2x plus 180 को अपने को मिनिमाइज करना है, then the number of marbles in jar 10 would be 220 minus x को अपने को वैल्यू बतानी है। तो देखो यार, इसको अगर आपको मिनिमम बनाना है तो ऑब्वियसली आप x की मिनिमम वैल्यू यूज़ करोगे। x की मिनिमम वैल्यू मतलब आप 19 यूज़ करने वाले हो, तो बस इसमें 19 यूज़ कर देंगे जार 10 में। सो 220 माइनस ऑफ 19 एंड दैट विल गिव यू 201 एंड द आंसर टू द फाइनल प्रॉब्लम बिकम्स 201, राइट? सो दिस वाज नॉट such a difficult set. This could be classified under a easy to moderate set. Depends how you go about this set, whether you write the variables or not. Right, now I hope you have understood this set. If you have any doubts in this particular set, then you can just put that in the comments. Thank you.